بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، مشرق وسطی میں جاری جنگ 8ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر شدید حملے کیے گئے ہیں، بالخصوص ان کی شہری آبادی پر، اور اب تک کے اسٹیمیٹس کے مطابق 1332 افراد جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، ہسپتال ہیں، ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی تازہ حملے کیے گئے ہیں اور ان کی جو 24ویں میزائل کی لہر وہ بھی اسرائیل پر داغی گئی ہے۔ البتہ آج ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایک بڑا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک پر حملے نہیں کرے گا، تاہم یہ اس بات سے مشروط ہے کہ وہاں سے بھی حملے نہ کیے جائیں یا ان کی زمین استعمال نہ ہو۔ یہ بھی ایک اور اہم آج ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی سعودی عرب میں رائل ایکسیلنسی جو وزیر دفاع ہیں خالد بن سلمان کے ساتھ، اور دونوں ممالک کے درمیان آپ کے علم میں ہے کہ ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ، ایک فریم ورک میں پاکستان اور سعودی عرب جڑے ہوئے ہیں۔ جو حملے سعودی عرب میں ہوئے اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا گیا، اور ایران سے پاکستان پہلے بھی ایران پہ یہ زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے جو حملے ہیں وہ پڑوسی ممالک پہ نہ کرے۔ اس حوالے سے اس بیان کی اہمیت بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہے جو ایرانی صدر کی جانب سے دی گئی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر کی بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک سے بلا شرائط سرنڈر نہیں کرتا ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے جاری رہیں گے۔ اور جو ایران کے صدر کا بیان ہے اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے مجبور کیا کہ ایران کے صدر نے اپنے پڑوسی ممالک سے معذرت بھی کی جو حملے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ جو حملے نہیں ہوں گے۔ تاہم یہ مشروط بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اب وہ حملوں میں تیزی کے بعد کس سمت دکھائی دے رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اپنا ہارموز، اس کی بندش سے جو توانائی کا کوریڈور ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے، اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ اور گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی اضافہ جو ہے اس کے بارے میں وفاقی وزراء کا کہنا تھا اس کی بڑی وجہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے، اور جو وہاں سے جو پیٹرول کی ترسیل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک تو پاکستان جو ہے سپلائی چین کو جو ہے اس کے الٹرنیٹ روٹس تلاش کر رہا ہے، اور دوسرا یہ آپ کے علم ہے کہ کل بھی جب ہم شو کر رہے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو برینڈ کی پرائز ہے فی ڈالر وہ $100 پر بیرل سے بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جو دو میرے ساتھ ممتاز تجزیہ کار موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے، امریکہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زوم ویڈیو لنک پہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، نوازش آپ نے وقت دیا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے حسین باقری صاحب نے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور تہران ایران سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں۔ حسین باقری صاحب آپ کے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سر بتائیے گا، مشرق وسطیٰ میں جنگ جو ہے اب 8ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، بیانات جو ہیں اور دونوں طرف سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر شدید اور رقیق حملوں کے حوالے سے، کیسے صورتحال کو ایوالو ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ امریکی صدر کا کہنا ہے جب تک سے بلا شرائط سرنڈر نہیں ہوتا، اور ایران کے صدر کا کہنا ہے کہ ہم سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے کل یہ بیان دیا تھا کہ کچھ ممالک سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو جنگ طول پکڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی نیگوسیشن کی طرف بھی عمل بڑھے گا؟ السلام علیکم جی۔ دیکھیں، جو جنگ میں ایک وہ اصطلاح ہوتی ہے فاگ آف وار، تو فاگ آف وار میں آپ کو کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو تہران سے آئے، چاہے وہ آپ کو واشنگٹن سے آئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، سو وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے جو تمام تر بیان ہے، تمام تر، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ جنگ کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اس میں وہ میسیجنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ایز پالیسی سٹیٹمنٹ کم سمجھنا چاہیے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت یقیناً ایران جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ جنگ بڑھتی رہے، یس، کیونکہ اس کے نقصان بھی ہو رہے ہیں، اس کے پاس وسائل کی بھی مسائل ہیں، اور دوسرے امریکہ بھی میرے خیال میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ جنگ وہ جیت نہیں سکتے، یا جس طرح وہ جیتنا سمجھتے تھے وہ نہیں جیت سکتے۔ ہی وڈ لائک اے وے آؤٹ۔ اسی لیے جب وہ کہتے ہیں نا ہم بات نہیں کریں گے، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کریں گے۔ میرے خیال میں دونوں طرف جب بات اس قسم کی بڑک ماری جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی کی جیت ہوئی ہے تو وہ اسرائیل کی ہوئی ہے۔
ट्रम्प का मसला ये है कि अब उनको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं निकलूं कैसे, क्योंकि वो ये कह के तो नहीं निकल सकते अच्छा यार गलती हो गई अब हम वापस जी, चले जाते हैं। बिल्कुल। मुझे उसमें डर ये है कि जंग खत्म करने का तरीका वो ये ढूंढेंगे कि कोई इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि जिसके बाद ही कैन क्लेम विक्ट्री कि देखो हमने ये कर दिया, मैंने कहा था ना। और वो पिछले 3 एक दिन से जो बार बार कह रहे हैं, वो भी और हैक्सत भी, कि अभी जो मैं कर सकता हूं तुम लोग सोच भी नहीं नहीं, सकते। आयतुल्ला तो आई एम खामेनेई वेरी की अफ्रेड। शहादत के बाद भी इससे भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है डॉक्टर साहब? यही मुझे डर यही है, आई डोंट नो क्या हो सकती है, लेकिन मुझे डर यही है कि अब उनको किसी किस्म की शहरों पे बमबारी के साथ लोगों की हलाकत कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। जो हमने देखा ना सिर्फ खामेनेई का, उससे पहले जब हमने देखा कि बम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे फेंका गया जी, पिछली जी। इसकी वर्जन में, तो हम वो हर सारी चीज़ें जो सोचते थे कि नहीं हो सकती वो हो गई। बट ट्रंप को एक ना वे वो कवर चाहिए। हम्म। लेकिन जो आपका सवाल है मेरे ख्याल में उसका सही जवाब ये है कि बमबारी अगर रुक भी जाएगी तो मसला जो है नहीं रोक सकेगा, और मसला अब जो है वो बहुत बड़ा हो गया। और खुसूसन खamenei साहब की असैसिनेशन के बाद अभी तो देखें हम जंग में इतने मसरूफ़ हैं कि हमने ये सोचा ही नहीं है कि उसके मुहर्रिकात क्या होंगे। जी। ईरान के अंदर क्या होंगे, ईरान से बाहर क्या होंगे, लोगों की फीलिंग में क्या होंगे, दूसरे मुसलमान ममालिक में क्या होंगे। तो अभी तो हमारा सारा फोकस ये है कि यहाँ से इतने बम और वहाँ से उतने बम और हलाकतें जी। और तमाम जो इमीडिएट चीज़ें और तेल की कीमत ये वगैरह, ये सारी बहुत क्योंकि इमीडिएट हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम्म। लेकिन अगर ये सारी रुक भी जाती हैं तो ये सोचना कि अच्छा उसके बाद हम वहीं वापस पहुंच जाएंगे जहाँ थे, हालांकि वो भी कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी, आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपकी दुनिया बदल चुकी है, एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, जी। इस कार्रवाई से मेरे ख्याल में जो आने वाली दुनिया है उस पर कोई मुस्बत चाहे जो मर्जी हो जाए, देर इज़ नो गुड नेक्स्ट स्टेप फॉर एनी वन। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो कोई दो राय नहीं। हुसैन बाकरी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान के सदर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है जो इंटरिम काउंसिल लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि जो हमसाया ममालिक हैं उन पर जो है वो हमले नहीं होंगे, और ये मशरूत है कि अगर वहाँ से भी कोई इस तरह के हमले, क्योंकि अमरीकी अड्डे हैं, बेसिस हैं, लेकिन हमने देखा कि इसके अलावा भी टारगेट्स जो हैं वो हिट हुए हैं, चाहे वो अबू धाबी है, दुबई है, रियाद है, उस पर कुछ खबरें ये भी इंटेलिजेंस की आ रही हैं कि शायद इसराइल भी बीच में इन्वॉल्व है। किस तरह हुसैन बाकरी साहब देखते हैं ये जो नया बयान सामने आया है ईरान के सदर का, ये कितना सिग्निफिकेंट है? और कल उनका बयान आया था कि कुछ ममालिक सिफारती कोशिशें जो हैं उनकी जानिब से शुरू की जा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। प्रोफेसर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये थे कि जंग में जो कुछ कहते हैं ज़्यादा उस पे के ऊपर भरोसा न किया जाए। जी। पेज़ेश्कियान साहब की इस इंटरव्यू को 4 घंटे पहले रिकॉर्ड की गई और 3 घंटे पहले अज़-ज़ुफ़रा एयरबेस के ऊपर ईरान ने 2 खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ अटैक करके ईरानी मीडिया के मुताबिक कम से कम 22 अमेरिकन सोल्जर्स उसमें मारे गए हैं। अब आप इस बयान को इसके सामने रखें कि एमरेट के अंदर अज़-ज़ुफ़रा के ऊपर अटैक हुआ है। ये याद रखें, ईरान पहले दिन से ही कह रहा है कि हम किसी भी अपने हमसाया मुल्क के ऊपर नहीं, हम लेजिटिमेट टारगेट्स हैं उन मुल्कों के अंदर जो अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ पे, और वो अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम उनके ऊपर ज़रूर अटैक करेंगे। जी। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि अभी ईरान 3500 किलोमीटर तवील इलाकाई कोस के एक जंगी बहरान को संभाल रहा है जो कि बहर अरब के शुमाली हिस्से से लेकर जजीरे कब्रिस तक फैला है। दूसरी जो बात है, ट्रम्प साहब ने एक हमसाय मुल्क को यकीन दहानी की थी कि मैं ये जंग 4 दिन के अंदर खत्म कर जी। दूंगा और यहाँ के जो रजीम है उसको मैं चेंज कर दूंगा। हम्म। अब हम देख रहे हैं खामनेई साहब की जो बयान और ईरान का जो बयान था वो सच निकली। अगर जंग शुरू हुई तो इसका आगाज आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसका अंजाम तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। आज 8वीं दिन है, आपने कहा 25 राउंड्स, नाउ इट इज 26 राउंड ऑफ रिटेलिएशन। अच्छा। और इन रिटेलिएशंस में आप ये देखें, मुत्तहद अरब इमारात में 2 थॉट रडार सिस्टम, सऊदी अरब में 1, उर्दून में 1, बहरीन, कुवैत, इमारात और कतर में कई निज़ाम भी मुतासर हुए हैं। उसके साथ साथ तेहरान में सबसे ज्यादा बमबारी हुई, मोर देन 3000 टाइम्स ईरान के ऊपर, जो अक्सर तेहरान के ऊपर हुआ। लेकिन सेकंड नंबर पे आता है हुर्मुज़गान प्रोविंस। अच्छा। तो हुर्मुज़गान पे क्यों ये लोग अटैक कर रहे थे? इसलिए कि ये जो नेटवर्क है वहां पे, इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनको खत्म करके
आबराय हॉर्मुज के ऊपर ईरान के कंट्रोल को महदूद बना सके। अच्छा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। आबराय हॉर्मुज की कंट्रोल पूरा की पूरा ईरानियों के हाथ में है। वो जिस कश्ती जो अपने मफादात के साथ अलाइन है उसको गुजरने दे रहे हैं, और जो अपने मफादात के साथ अलाइन नहीं है उसको नहीं गुजरने दे रहे हैं। अभी भी 1000 के करीब कश्तियां आबराय हॉर्मुज पे रुके हुए हैं, जो अक्सर तेल और गैस के एक्चुअली सामान लेके जा रहे हैं। तो ठीक। इसका मतलब ये है, प्रोफेसर साहब ने एक और बात पे भी इशारा की कि हमें बेसिक के ऊपर जाना चाहिए। ट्रम्प ने बहुत कोशिश की इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए, रिजीम चेंज लाने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए। अब उनके पास स्ट्रैटेजिक डेप्थ और उनके पास विन कार्ड के अलावा ये कहें कि हमने लोगों के ऊपर बमबारी की है, 1300-1400 ईरानी लोग मारे, जिनमें से 170 स्कूल की नन्हे बच्चियां जी होती बिल्कुल। थी, तालिबात थे। जी। ये एट्रॉसिटी किसी और शहर में होता, किसी और मुल्क में होता, अगर फ़लस्तीनी इसराइलियों को इस तरह मारते हैं, या ये रशियन यूक्रेनियन को इस तरह मारते हैं, या ईरानी अमेरिकन्स को मारते, तो आप यकीन करें पूरी दुनिया सदियों तक इसके बारे में बात करते थे। लेकिन ये 170 तालिबात, क्योंकि ईरानी मुस्लिम बच्चियां थी, ये खामोश हो गए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कह रही है कि इट वाज प्रिसीजन अटैक ऑन द स्कूल। इनको पता भी है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक जुमला नहीं कहा है कि हमसे गलती हुई, हमें माफ कर। नहीं, ये है जी वेस्ट और ये है ईस्ट। ये है वेस्ट का रवैया और ये है मुसलमानों का रवैया। ठीक। बाकी जो आगे क्या होने वाला है, कुछ भी करें, खामनेई साहब की शहादत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ और कर सकते हैं। ये कुछ भी करें, ईरानी अवाम जिस तरह सड़कों पे, जिस तरह अपने गवर्नमेंट के साथ सिंसियरली खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब को बहुत जल्द ज़िलालत के साथ शिकस्त होकर यहाँ से वापस जानी पड़ेगी। और अगर ये शिकस्त हो गई तो ये आखिरी मुहिम जुई होगी ट्रम्प के ऊपर। लास्ट फाइनल जुमला ये है, पिछले 100 साल में यूनाइटेड स्टेट ने जहां जहां अटैक करके जंगें छेड़ी है, किसी एक में भी इनको फतह नसीब नहीं हुई। तो ये भी उनका लास्ट होगा इंशाल्लाह। जी। डॉक्टर आदिल साहब, सर क्या कहेंगे? आपने हुसैन बाकरी साहब ने पूरा एनालिसिस दिया कि ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा उनका इंटरव्यू आया, लेकिन उसके बाद जो है वो हमले किए जा रहे हैं। ये जो ईरान की स्ट्रेटजी है, आप समझते हैं इससे पेन जो है या पिंच वो करने में कामयाब हो रहे हैं अमेरिका को? क्योंकि आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि इसमें जो विनर वो इस वक्त इसराइल लग रहा है, क्योंकि इसराइल पे भी अटैक हो रहे हैं। जैसे हुसैन बाकरी साहब कह रहे हैं कि 26वीं जो वेव है वो अटैक की वहाँ पर जारी है, लेकिन वहाँ से खबरें बहुत महदूद पैमाने पर सामने आती हैं। और एक इंडियन की मैं वो गुफ्तगू सुन रहा था सोशल मीडिया पे कि वो उनका कि वो बहुत ज़्यादा हशप भी करते हैं। आप जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो पे ऑफ उसे कर रही है? आज फर्स्ट टाइम मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराह का बयान भी ऑफिशियली आया है, जिसमें उन्होंने कहा हम हालत जंग में हैं और हम इसका पूरा अपना दिफा करेंगे। आपको किस तरह ये स्टेलमेट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप अनवर साहब, मेरे ख्याल में, एंड आई बहुत माजरत के साथ, आई डू नॉट थिंक ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो गल्फ पे अटैक करे। देखिए, ईरान का खुद भी कहना ये है कि हमारा हमारा मसला जो है वो हमारे गल्फ के हमसायों से नहीं है। ईरान की मजबूरी ये है कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ट्रंप के थ्रू उनको ऐसा कॉर्नर कर दिया है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक कैपेबिलिटी की वजह से भी और वो भी। तो वो ईरान की तरफ से मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर इस वक्त जो अगर नैरेटिव की जंग है वो ये है कि ईरान ये कह रहा है कि जनाब मैं अमेरिकन अड्डों पे अटैक कर रहा हूं। जी। और मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट आई है इसको भी इसी हवाले से हमें समझना चाहिए। नेतन्याहू ये चाहेंगे और ट्रंप साहब भी ये चाहेंगे कि इस जंग को ईरान वर्सेस गल्फ जंग बना दिया जाए, क्योंकि फिर जो तमाम लोगों में गुफ्तगू होगी, चाहे वो गल्फ ममालिक में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, वो तब्दील हो जाएगी। मैं तो मेरी शुरू से ये फीलिंग रही है कि पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा, खुसूसन अमरीकनों में, लेकिन दूसरे हमारे यहाँ भी कई लोगों ने, कि जी ईरान की स्ट्रेटजी है कि जंग बढ़ा दो। मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ आती। ईरान तो जंग चाहता नहीं था इन्हें, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है, और ना ही वो बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि अगर बढ़ाएगा उतना ही उस पर मसला होगा अगर ये तमाम मुल्क भी हमले करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में जंग बढ़ाने का जो गोल है वो सिर्फ नेतन्याहू का है। एट दिस पॉइंट वो ट्रंप का भी नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो झूठे सीधे वादे करके आया कि जी मैं 2 दिन में खत्म करता हूँ, 5 मिनट दो मैं अभी खत्म करता हूँ। सो द ओनली एक्टर हु वांट्स दिस जंग कि ये लंबी हो और ये बढ़ जाए इज नेतन्याहू। और उसकी वजह जो है वो लॉजिकल है, वो ये है कि इन अ वे असली जो जीत हुई है वो नेतन्याहू की हुई है। उसने इन अ वे मास्टर स्ट्रोक करके जो सोचता था नहीं कर सकता वो भी हो गया। मतलब ये कि
ایک تو یہ نا کہ جو ایران میں ہوا اور خامنہ ای صاحب کی اسیسنیشن، جی لیکن اس کے جتنے ہمسائے تھے جو وہ کہتا تھا یہ سارے میرے دشمن ہیں. اسرائیل کا موقف تو یہ نا کہ میں ایک جی چھوٹا سا ملک ہوں، میرے ارد گرد سارے عرب ممالک جتنے ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں اور یہ سارے مل کے مجھ پہ حملہ کر دیں گے. 1960 سے اسرائیل یہی کہہ رہا ہے. اب ہوا کیا، اس نے ایسی ایک طرح سے چیس موو کی کہ جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور باقی بھی ایسے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ علاقہ اگر جنگ میں ہو جائے. آئی تھنک اس وقت ایران بھی بڑی کیئرفلی موو کر رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے جتنی ریسٹرینٹ دکھا سکتے ہیں دکھا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں فکر ہے فالس فلیگ کی کہ کوئی یس ایک ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسی چنگاری بالکل بڑھ جائے ہاں جس سے یہ جو ہے دیٹ از دا کیئرفلنس آف دس. سو مائی سینس از کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب ایک طرح سے پھنس گیا. نیتن یاہو اس وقت بہت خوش ہے کیونکہ اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو دی اسرائیلی پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو تقویت ملے گی. ایران وانٹس ڈز ناٹ وانٹ دی وار ٹو انکریز کیونکہ اس کی مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آتی. لیکن نور از اٹ ریڈی، کیونکہ میں آج کل ایک جملہ بول رہا ہوں اس کی مجھے اجازت دیجیے پھر میں خاموش ہوتا ہوں. جی وہ یہ کہ میرے خیال میں ایران جنگ ہار نہیں سکتا کیونکہ اس کی بقا کی بات ہو گئی ہے، سروائیول کی بات ہو گئی، ایگزسٹنس کی بات ہو گئی ہے. اور امریکہ کو نظر آ گیا کہ وہ جنگ جیت نہیں سکتا. اینڈ دیٹ از دا اسٹیل میٹ. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے شخص ہیں کہ وہ نکلنے سے پہلے ہی ول نیڈ سم ایکسکیوز، جیسے آج کی ان کی ٹویٹ بھی تھی یس کہ جھوٹا سچا وہ کہہ سکیں جی میں نے یہ کیا اور ہاں میں اتنا میں بڑا نے جی جیت گیا معافی ہوں کہ منگوا اب لی ہے ان سے. بالکل سر سو اس میں دیٹ از دا ویری کنانڈرم. اور امپورٹنٹ. اس ڈاکٹر صاحب میں میں جیت اس سے پہلے کہ باقی بالکل صاحب کے پاس جاؤں، سر اسرائیل کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے. کچھ خبریں ایمینیٹ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی کافی افراتفری ہے، اختلاف ہے پولیس اور ان کی فوج کے درمیان، چونکہ وہ بہت ایسی آہنی سب پردہ پڑا ہوا ہے. ایک تو آئرن ڈوم ہے ان کا، وہ تو خیر ایرانیوں نے اس کو پھاڑ دیا، لیکن آہنی پردہ بھی ہے خبروں سے متعلق. اندر کے معاملات بھی اسرائیل کے کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں نیتن یاہو کے لیے. نہیں درست بات ہے آپ کی، لیکن انوار یہ تو پہلے بھی درست تھا نا. دیکھیں جب اسرائیل نے پچھلی بار حملہ کیا تھا تب بھی ان کے اپنے نہیں تھے. سو ہاں ابھی تک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب ہر کاروائی سے ایک طرح سے اپنی اسٹرینتھ منوا لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے کوئی بھی ملک ہو، جیسا مرضی ملک ہو، ہوں اس میں ایک یکجہتی ضرور آتی ہے. بلکہ اس میں ایک چیز کہوں گا، جی اچھا حالات یقیناً ایران کے اندر بھی اچھے نہیں ہو سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاں اتنے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا جائے بالکل اور سب نارمل ہو. لیکن یو سی the یونٹی کمنگ. واحد جگہ یہاں یہ نہیں ہو رہا اینڈ دیٹ میں بی مور امپورٹنٹ. اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ شاید. دیکھیں نا ایک مجھے گزارش کی اجازت دیجیے. امریکہ کا خیال یہ تھا یا اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ یہ جب کاروائی ہوگی اس سے ایران کے اندر ایسی کشیدگی یس بنے گی کہ وہ جو سپوزڈ کروڑوں لوگ تھے وہ ہاں باہر آئیں گے اور اور چینج وہ ہو جائے گی. وہ ہوا نہیں جی کیونکہ اس کے بجائے زیادہ یکجہتی ہوگی. اسرائیل کے اندر جیسے آپ نے کہا ہے ایک ٹوٹ پہلے بھی تھی اور وہ اس سے شاید بڑھ بھی سکتی ہے. میرے خیال میں جو اہم انٹرنل پالیٹکس ہے وہ امریکہ کی ہے. یس ٹھیک. سر اس پہ امریکہ آتے ہیں از دی ڈاکٹر اونلی صاحب، اس ایکٹر پہ جو آتے ہیں جو اس وقت امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس، اس یکجا پہ میں آتا ہوں سر، اس پہ میں آتا ہوں. میں چاہوں گا ذرا باقری صاحب سے بھی. حسین باقری صاحب سر آپ بتائیے گا کہ ایران کے حوالے سے یہ جو خیال تھا امریکہ کا کہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو سین سے ان کی شہادت کے بعد وہاں پر ایک اپرائزنگ ہو جائے گی، اور ہم نے کچھ ویڈیو کلپس بھی دیکھی ہیں، وہ جو ایرانی ڈائسپورا شاید باہر رہتا ہے ان کی جانب سے بیانات بھی سامنے آئے تھے. رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ ہمیشہ سین پر آ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں آنے کو تیار ہوں. بتائیے گا کہ اس وقت ایران جو ہے وہ سسٹین تو کر رہا ہے، مطلب ایک بہادری سے بولڈلی جنگ کا جو ہے دفاعی رد عمل بھی دے رہا ہے، جوابی رد عمل بھی دے رہا ہے، لیکن ان سائڈ کیا لوگوں کی رائے پائی جاتی ہے کہ اس جنگ کو طویل ہوتی ہے تو ایران کا زیادہ نقصان ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اور نیگوسیشنز کی بھی کل بات کی تھی ایران کے صدر نے. کچھ اس حوالے سے آپ انسائٹ دیں گے؟ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں ممالک کی جانب سے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، اگرچہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے امریکہ اور ایران کے درمیان؟ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر ہو بھی رہی ہیں تو یہ سارے کوششیں امریکہ کے سائڈ پہ ہونا چاہیے. جنگ کا اسٹارٹ امریکہ نے کیا تھا، ایران نے نہیں کیا تھا. جی بالکل ابھی بھی ایران کہہ رہا ہے اگر ہمارے اوپر یہ لوگ بمباری کرنا اور ہمارے اوپر اٹیک کرنا چھوڑے تو ہم ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. ایکچولی ٹھیک جو بھی ایران آج تک کر رہا ہے وہ سارے ریٹیلیشن کے روپ میں ہے، وہ کوئی اٹیک کے روپ میں نہیں ہے. اسٹارٹ دا وار ہیز بین بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کچھ ممالک ہے یہاں پہ، اسلامی ممالک ہے، غیر اسلامی ملک ہے، کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو امریکہ اور اسرائیل کو منانا پڑے گا. دوسری بات،
میں کوئکلی بتاتا ہوں کیونکہ کسی اور پروگرام میں میں نے جوائن کرنا ہے. جی 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 پلیز. یاد رکھیں جب بھی ہم اسرائیل کے اوپر ہٹ کرتے ہیں تھوڑی بات آگے بڑھتی ہے تو ہم سارے جنگ کو اسٹیل میٹ کی طرف یا جنگ بندی کرنے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اسلام اور مسلمان ملکوں کے پاس اتنی غیرت ہوتی کہ وہ ابھی اس ٹائم پہ جب آپ کو پتا ہے وہ آپ نے سنا ہے انڈین جرنلسٹ کیا جی کہہ جی رہا تھا. میرے اپنے دوست یورپ میں ابھی وزٹ کر کے واپس آئے ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی. مجھے کہہ رہے تھے حسین ہزاروں کی تعداد میں لاشیں ہم نے دیکھی ہے لیکن ہم سب کو بائیکاٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ بھولیں گے نہیں ہمارے خلاف کہ کس کس جگہ پہ گری ہے. تو یہ جب اسرائیل کے اوپر اس طرح غیرت اور جرأت کے ساتھ یہ لوگ فائر کر رہے ہیں وہ 75,000 غزہ کے مسلمانوں کو یاد کر کے ایک ہونا چاہیے تھا جو انفارچونیٹلی ہم ہوتے نہیں ہیں. اکثر عرب ممالک تو اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں. لاسٹ میں آپ کو بتاؤں ایرانیوں کے حوالے سے میرا خیال ہے ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ٹرمپ صاحب نے کی. وہ یہ تھا کہ اعتراضات کو انہوں نے اچھی جگہ پہ لے کے گئے تھے. ایران کے اندر بڑی اختلاف پائی جا رہی تھی اور اعتراضات بھی ہو رہے تھے لیکن یہ لوگ حملہ کرنے کے بعد یہ جو بکھری ہوئی انگلیاں نظر آ رہے تھے ایرانیوں کی ان کو انہوں نے ایک مٹھی بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. اور میرا خیال ہے اب ایرانی لوگوں کی جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مٹھی کھائیں گے مٹی نہیں دیں گے. ہم خون دیں گے گھر نہیں دیں گے عزت نہیں دیں گے. اب یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا اور ایون کہ جنگ بندی ہونے کے بعد بھی ٹرمپ اور امریکن ہمیشہ کے لیے ایرانیوں کے ٹارگٹ ہی بنے رہیں گے. یہ بڑی اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب اس پہ کمنٹ کیجیے گا. اور امریکہ کے اندر کی جو آپ نے کہا کہ پالیٹکس ہے اس میں اختلاف جو ہے وہ زیادہ گہرا ہے یا پالیٹکس کہہ لیں یا معاشرہ کہہ لیں سر ٹورڈز دی اینڈ. جی میرے خیال میں ایک بات تو بالکل طے ہے جیسے کہ کہی بھی گئی کہ یہ جنگ جو ہے اب اس جنگ سے بڑی ہو چکی ہے. جی. اور اس کی گولیاں رکیں یا نہ رکیں ابھی تو ہم نے سوچنا بھی نہیں شروع کیا کہ اور کیا کیا قیامت آنی ہے. اور دوسرا جہاں تک انٹرنل بات ہے عموماً جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ ہر ملک میں ہوتا ہے ہمارے میں بھی ہوتا ہے دوسرے میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ حملہ ہو یا آپ حملہ کریں تو آپ کی قوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے. امریکہ میں آڈلی انف حالانکہ ایران جو ہے وہ اتنا ڈیمونائز ہوا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے. ایسا نہیں ہے کہ امریکن لوگ ایران کی حمایت میں ہیں لیکن سوال یہ پوچھا جا رہا ہے ہر روز ٹی وی پہ پوچھا جا رہا ہے ہر پروگرام میں پوچھا جا رہا ہے یار یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں. یس یہ جو 6-7 مرے ہیں جتنے بھی مرے ہیں یہ کس کے لیے مرے. بالکل. اور یہ سوال کوئی معاشرہ جب پوچھتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ٹرمپ صاحب پہ اصلی پریشر ہوگا تو میرے خیال میں وہ انٹرنل امریکن ہوگا اور خصوصاً جب ان کے اپنے ریپبلکن ساتھی جو ہیں کیونکہ ان کی اصلی جو ان کی آئرن شیلڈ ہے نا وہ کانگریس میں ان کی ریپبلکن جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں جیت سکیں گے وہ جب چینج ہو رہی ہے. اور دیکھیں میں 30 سال سے میں نے تو کبھی امریکہ میں اسرائیل پہ اتنے سوال اٹھتے نہیں دیکھے جو اب اٹھ رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ. جو لوگ خاموشی میں بھی بات کرنے سے ڈرتے تھے اب وہ علل اعلان کی جا رہی ہے. So I do think کہ the structure has changed. لیکن اس چینج کے بیچ میں مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ کوئی کوئی ایسا عمل جیسے ہم کہہ رہے تھے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ نہ ہو جائے. ہیکسیٹ صاحب یا ٹرمپ صاحب کیونکہ the power reality is also real. ویری امپورٹنٹ. یہ اٹس اے ورڈ آف کوشن لیکن آپ نے بڑا اہم نکات اٹھائے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عادل نجم صاحب. آپ ہمارے ساتھ امریکہ سے جڑے ہوئے تھے. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیبل. حسین باقری صاحب تہران ایران سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ہم نے احاطہ کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کے بعد آئیں گے. جو پیٹرولیم پرائسز میں گزشتہ شب اضافہ ہوا ہے اس کی پہ گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجوہات بنی. بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اب اس کے کیا نتائج و اثرات ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اہم اجلاس چیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں ایک رپورٹ بنائی جائے کہ کس طرح سادگی اور جو ہے وہ کفایت شعاری کے میجرز کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا. بریک کے بعد ہمیں سے جوائن کریں گے خرم شہزاد صاحب. آپ مشیر ہیں وفاقی وزیر خزانہ کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے
बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इस माह में एक फरिश्ता सदा लगाता है, ऐ खैर चाहने वाले तुझे बशारत हो, और ऐ बुराई चाहने वाले रुक जा, और ये सदा सारा रमजान लगाई जाती है। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस ज़ात ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क़ निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। अगर कोई मशकूक सरगर्मी या कोई शख्स मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई का बायस बन सकता हो, कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक होने का मशकूक दावा करे, कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस हो, कोई शख्स या ग्रोह नफरत अंगेज तकारीर में मुलव्वस हो, एक जिम्मेदार शहरी बने और इंसदादे दहशतगर्दी हेल्पलाइन 1719-1719 पर फौरन कॉल करें। पुरअमन पाकिस्तान, हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर लिया है खुर्रम शहजाद साहब ने। आप मुशीर हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना के। खुर्रम शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, जो सवाल सब लोगों के इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, आप ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, 55 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीज़ल, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सवाल उठ रहा है कि ये तो हमारे पास पहले से जो स्टॉक मौजूद था वो तो हमने लिया था $60 या $63 का, तो ये अभी तो नई कीमत पे जो बढ़ती हुई प्राइसेस है उस पर हमने नया स्टॉक नहीं लिया था, फिर क्यों कर ज़रूरत महसूस की गई कि जो ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है उसकी कीमतों में इतना बेतहाशा इजाफा कर दिया गया? खुर्रम साहब। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ख़ासकर देखें, जो ऑयल का सेक्टर होता है ना, ये एनर्जी सेक्टर होता है, ये रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी इकॉनमी का। बल्कि ये कहना जो है बड़ा मुनासिब होगा कि अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया एनर्जी जो है ना रन करती है, और एनर्जी जो है सेंसिटिव सेक्टर भी है और ये बहुत रेगुलेटेड सेक्टर भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई जो है पेट्रोल अपने पास ज़ख़ीरा कर ले और बेचना शुरू कर दे और उसका कुछ भी कर सकता है, यानी कि सिक्योरिटी का भी पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। तो जब मैं रेगुलेशन की बात करता हूँ तो इसमें नेचुरली जो है किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी, इकनॉमिक सिक्योरिटी भी आती है एनर्जी सिक्योरिटी के साथ। तो उसमें होता क्या है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना अपनी स्टोरेज या अपना रिज़र्व या अपना स्टॉक कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ता है, और जो कंपनियां रखती हैं वो बड़ी रेगुलेटेड होती हैं और उनके लाइसेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी कोई भी उठ के कहे कि जी मैं 10 दिन का पेट्रोल अपने पास रख सकता हूँ। तो इसमें ओगरा जो है ना वो पाकिस्तान का रेगुलेटर है ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर का। तो ओगरा ये कहता है उन कंपनीज को जो तेल की आमदो-रफ्त में डील करती हैं, उनको ये कहता है कि कम से कम 20 दिन का स्टॉक आपको रखना अपने पास ज़रूरी है, ताकि इसी तरह की सिचुएशन कभी हो तो एटलीस्ट हमारे पास 20 दिन का स्टॉक हो, ताकि हम फ़ौरन से जो है अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना खो दें या उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाएं। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक बैकग्राउंड ये है कि जी कोई भी कंपनी होती है उसके पास 20 दिन का स्टॉक होना ज़रूरी है। अब 20 दिन का स्टॉक नहीं खर्च होता उस तरह से, उससे ऊपर रखा जाता है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने थोड़ा पहले बिल्ड कर लिया था स्टॉक, तो आज 25 से 28 दिन का स्टॉक हमारे पास है, यानी कि इन्हीं कंपनीज के पास है। उसमें क्रूड ऑयल भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है और दूसरे जो प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसमें होता क्या है, कीमत ऊपर जाती है तो मैं जो एक्स्ट्रा लीटर मंगवा रहा हूँ वही 1 लीटर जो है बेच रहा हूँ।
तो मैं जो मंगवा रहा हूँ वो भी मुझे महंगा पड़ रहा है, जो मैं बेच रहा हूँ वो भी मुझे उतनी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। वरना अगर मैं महंगा मंगवाता हूँ और सस्ता बेच दूंगा तो कंपनी का नुकसान होगा। सर, लेकिन अभी तो वो नहीं मंगवाया ना, कतरखानी के लिए माजरत। लोन लेके फिर वो सब्सिडी देगी। सर, कतरखानी के लिए माजरत, स्टॉक तो पुराना पड़ा था ना। ये पिछले आज से 7 दिन की नहीं जी, ऐसा नहीं है, पुराना नहीं होता इसमें। मैं कह रहा हूँ रिजर्व में था वो, रिजर्व में। देखें एक बात बताएं मुझे, आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक रिजर्व का एक पोर्शन होता है जहां पे सुई आके कहती है कि बस अब पेट्रोल भरवा लो, ये रिजर्व पे आ गया आपका। जी जी जी। तो ये वही चीज है कि रिजर्व में आपका एक सिक्योरिटी की वजह से रिजर्व में होना जरूरी है। उसका इससे ताल्लुक नहीं है कि कीमत बढ़ी तो उस पर गेन आ जाएगा, कीमत नीचे गिरी तो लॉस भी आएगा उस पर। वो बुक्स पे लॉस आता है। वो ऐसा नहीं होता कि जी पुराना स्टॉक पूरा खाली करें फिर नया स्टॉक लें, तो ये करते करते इकोनॉमी की जो है वो आपकी सिक्योरिटी आपकी जो है वो ज़ाया बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये प्लीज़ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रिजर्व स्टॉक रखना 20 दिन का ज़रूरी होता है। उसको बेचना नहीं है, उसको रखना है ताकि कभी इस तरह की वर्ल्ड लाइक सिचुएशन हो तो उसको निकाला जाए, ऐसे इस तरह से ना निकाला जाए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कीमत अगर बढ़ती है तो बड़ी भी मिलेगी, गिरती है तो वो गिरी भी मिलेगी। तो उस पर कोई बात नहीं होगी कि जी वो रिजर्व रखा हुआ है तो उस पर लॉस भी तो हो गया है। आप मुझे बताएं, आज 55 रुपए अगर गिराते या 30 रुपए भी गिराते तो आज मैं और आप ये सवाल कर रहे होते। आप कहते कि जी वो तो अच्छा हो गया, कोई मीडिया भी सवाल ना करता आई थिंक, और कोई ये ना कहता कि जी उसमें तो नुकसान हो गया है, और वही कंपनियां जो रिजर्व में 20 दिन का रखे बैठी उनको लॉस भी हो गया है। तो ये देखिए दोनों तरफ चलती हैं चीजें, ये बड़ी बेसिक चीज है। आई डोंट नो हम इस पर क्यों इतना जो है वो हमने एक हवा बना दिया है कि जी ये 20 दिन का स्टॉक था तो उस पर जो है ना आपने पैसे बढ़ा दिया। आप मुझे बताएं 1 मार्च को भी 8 रुपए बढ़े थे, 4 रुपए बढ़े थे, तो क्या उस पर गेन नहीं आया होगा? इसी तरह से जब कोविड था या जब 2022-23 की बात थी, उसके बाद ऑयल नीचे आना शुरू हो गया था, तो उस वक्त भी तो 20 दिन के रिजर्व थे आपके पास, उस पर लॉस नहीं आया होगा। तो ये दोनों तरफ काम करते हैं। खुरम साहब, ये तो आपने बताया कि आपने किसी को फायदा दे दिया, किसी को नुकसान जी दे सर, दिया। खुरम साहब ये तो आपने बताया कि इस तरह हाउ इट वर्क्स, ये जो आपने बताया। लेकिन सर लेवी भी बढ़ा दी ना आप लोगों ने, पेट्रोलियम लेवी भी इसी में 20 रुपए के करीब पेट्रोल पे लेवी बढ़ाई है, डीजल पे कम की है। नहीं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की है। आपको पता है डीजल की प्राइस कितनी बड़ी है? डीजल की प्राइस 76 रुपए बढ़ी है, 76 रुपए, और बढ़ाई कितनी गई है? 55 रुपए। ठीक है, कितना फर्क आ गया? तकरीबन 21 रुपए का फर्क आ गया। जी जी। तो जो बड़ी है वो पूरी पास ऑन नहीं की, बल्कि पेट्रोल से कुछ निकाल के इधर डीजल से निकाल के इधर ऐड किया है ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए और हमें ज्यादा इंक्रीज ना करना पड़े। दूसरी बात यह है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत तकरीबन कोई $78 से उठ के $106 गई है, और डीजल की कीमत $88 से उठ के $150 गई है 6-7 दिनों में सिर्फ। तो इंक्रीज कितना आया है? 20%। तो देखिए पूरी फैक्ट्स देखें, पूरे नंबर्स देखें, और जंग चल रही है, पूरे बॉर्डर पे जंग है आपकी, मतलब एक बॉर्डर पे जंग चल रही हो और आपकी इकोनॉमी में इतनी मुश्किल से स्टेबिलिटी आपने हासिल की हो, आपके रिजर्व्स भी लिमिटेड हो, फॉरेक्स रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, और आपको ये प्रोएक्टिव एक्शन लेने हैं ताकि प्राइस जो है ना मार्केट में वही होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में गिरेगी तो वो पास ऑन भी होना चाहिए कि जितनी गिरेगी उतनी पास ऑन करें ताकि रिलीफ भी जल्दी मिले। लेकिन ये है पेन है, शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन ये पेन जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी खर्चे कम ना हो, बाकी चीज़ें मैनेज ना हो, लेकिन जहाँ पे प्राइसेस आती हैं वहाँ अगर आपने टाइम पे पास ऑन नहीं किया तो होर्डिंग होती है, स्मगलिंग होती है, लोग निकाल के अपना माल बेचते हैं अलग अलग करके, और ये कंपनियां जो है ना इनको साथ लेके चलना है आपने। यही कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, इनको आपने श्योरिटी देनी है इन बिजनेसेस को कि भाई आपको हम श्योरिटी देते हैं कि आपकी जो प्राइस आप इंपोर्ट करेंगे वो आपको मिलेगी भी। ये नहीं होगा कि नया सर्कुलर डेट खड़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट के पीछे ही भागते रहेंगे कि जी आप हमें पैसे पूरे करके दें, फिर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करे, फिर कर्जे लेके फिर आवाम को सस्ता पेट्रोल तो दे देगी, लेकिन बाद में कर्जे किसके ऊपर टूटते हैं? आवाम के ऊपर टूटते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, आपके यहाँ जो है वो महंगाई में इजाफा होता है, सूद बढ़ जाती है। खुरम शहजाद साहब, आपने कहा कि ये पेन है, ज़ाहिर बात है इससे पेन तो है लोगों को ऑब्वियसली, क्योंकि इसका इंपैक्ट तमाम फूड आइटम्स पर भी आएगा, रमजान शरीफ चल रहा है, किरायों पर भी आएगा, लोगों ने अपने घरों को भी जाना होता है। सर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या कोई और तरीकेकार नहीं था? आपके जो एक्सपेंडिचर इस पर कटौती लाई जाती, या जो प्रोटोकॉल की गाड़ियों में पेट्रोल होता है, या जो और ऐसे मेजर्स हैं जो पेट्रोल दिए जाते हैं उनमें यक जुम्बिश कलम के साथ अगर उन्हें खत्म कर दिया जाता तो उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट जाता ना। एक जो पेन है उस पर लोगों को फील होता कि तमाम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस पेन को इकट्ठा बियर कर रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात है, बहुत मुनासिब आपने बात की है। तो मैं इस पर आपको ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर चुकी है। आप देखें सूबाई गवर्नमेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गई हैं, KPK ने शुरू किया है, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फॉलो करेंगी। आपके जो फेडरल गवर्नमेंट है ये खुद भी अब आप आगे कमिंग डेज में आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो है वो काम का नंबर ऑफ डेज कम करना वीक में,
اور मे बी आधा दिन जो है छुट्टी ऐड हो जाए या एक दिन पूरा ऐड हो जाए, यानी कि 3 दिन छुट्टी हो जाए हफ्ते में, 4 दिन जो है काम हो, जो 4 दिन में भी काम हो उसका भी 80% घर से आप काम करें। जो ट्रैवल आप करते हैं, क्योंकि जो ट्रैवल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा आपकी जो है ना वो बर्डन डालती है ये ऑयल एंड गैस की जो है ना वो रिजर्व्स पे, तो ये खर्च ज़्यादा करती है। तो उस पर आपकी जो है ना वो कमी हो जाए, इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाए, और ज़्यादातर पुल इन हो, यानी कि ट्रेन से जाएँ लोग, बसेस से जाएँ, और जो है अपनी गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करें। तो ये कंजर्वेशन और फिर तालीमी इदारे हैं, सब कुछ है, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ अभी नज़र आएगा इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा नहीं है, या ये भी नहीं कह रहा मैं कि जी आप वो खर्चे कम ना करें और इस तरफ पेट्रोल बढ़ाते रहें। ये एंड डिस्कशन है, ये एंड और नहीं है कि ये हो सकता है या ये होगा या ये होगा, ये दोनों चीज़ें करनी है साथ के, खुद पे भी जो है कदरन डालनी है, खुद की भी जो है कंजम्पशन कम करनी है, और सेम टाइम पे प्राइस भी सही देनी है मार्केट में। और डिक्लाइन आएगा या इंटरनेशनल मार्केट में कमी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और आपके पास जो है ऑयल सस्ता मिलेगा, तो आपको सस्ता पास ऑन भी आप होते हुए देखेंगे। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट देखें ये नहीं चाहती कि जी वो ज़बरदस्ती जो है वो पास ऑन करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है ज़ाया करे। ये इकोनॉमिक डिसीजन है जो कि सही डिसीजन है, इसी को आगे लेके चलना चाहिए। सारी गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए कि प्राइस को मैनिपुलेट ना करें, जितने की जो चीज़ मिल रही है उसको उतने का बेचें, पीछे पूरा सिस्टम बेहतर करें ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, कंपटीशन ज़्यादा हो, और कंपटीशन में हमेशा कंज्यूमर का फायदा होता है। तो ये लार्जर जो है हमें जो है खुरम साहब एक और नुक्ता भी आया, सब्सिडाइज करके पेट्रोल सस्ता करते हैं। खुरम शहजाद साहब, खुरम साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, क्योंकि इसमें बहुत से एतराज़ात आ रहे, क्या ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है बास जो इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था उसको भी इसमें कवरेज दी गई है? लेट से पेट्रोल आपने कहा 55 रुपए बढ़ाया है और रीएडजस्टमेंट किया है, डीजल जो है 76 बढ़ता था वो भी 55 किया है। बहुत से एनालिस्ट को मैं देख रहा हूं वो कहते हैं 23 रुपए बनता था या 24 बनता था, जो आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको भी इसमें कवरेज देकर 55 रुपए जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस क्लेम में कितनी जान या सदाकत है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, रेवेन्यू जो है, जो पीएल पेट्रोलियम लेवी है वो टैक्स का एक हिस्सा है, लेवी जो है उसका हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी जो है टारगेट के ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑलरेडी उसको एक्सीड कर रही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आईएमएफ देखें आप, आईएमएफ प्रोग्राम में आईएमएफ को ये नहीं पता होगा कि टैक्सेस का शॉर्टफॉल कहाँ से किस तरह से पूरा हो रहा है। जहाँ से शॉर्टफॉल है वो अपनी जगह पर है, उसके लिए इकोनॉमी आगे जो है बेहतर होती है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उस पर आएगा। इस पे कोई वो नहीं है कि जी यहाँ से आपने पैसे बढ़ा के वहाँ से टैक्स पूरा कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ शिफ्टिंग हुई है कि कुछ पोर्शन अगर पेट्रोल का जो है वो ऐड कर दिया जाए और डीजल से निकाल दें, ताकि डीजल का 76 रुपये की जगह 55 रुपये हम जो है वो दें, 76 रुपये ना देना पड़े, और पेट्रोल की जगह पेट्रोल में जो है आप वहाँ से वो कर दें, पेट्रोलियम लेवी जो है वो एडजस्ट कर दें। तो ये आपस में अगर आप पूरा बिल्टअप देखें ना प्राइस का डिटेल में, जो अगरा की वेबसाइट पे भी रखा हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स हैं कि कोई लेवीज में कोई इजाफा नहीं हुआ। एक और चीज़, सेल्स टैक्स 18% होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जीरो सेल्स टैक्स है अभी तक बहुत अरसे से, ना पेट्रोल पे सेल्स टैक्स है ना डीजल पे सेल्स टैक्स है, तो वो तो जीरो किया हुआ है। तो पेट्रोलियम लेवी है जो की गई, उसको बढ़ाया नहीं गया, उसको रीएडजस्ट किया है अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तो मेरे ख्याल में ये तासुर ठीक नहीं है कि जी यहाँ से टैक्सेस को यहाँ से पूरा किया गया है। प्राइसेस बढ़ाई गई हैं डेफिनेटली, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस में मिल रही हैं, आगे जाते हुए देखा जाएगा कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आती हैं तो उसका जो है रिलीफ पास ऑन भी किया जाएगा। दीगर ममालिक में भी जो है वो क्या ज़ाहिर बात है अपनाए हॉर्मोज की बंदिश से, आप ठीक कह रहे हो, तवानाई का क्राइसिस बढ़ रहा है, 20% जो है जो तवानाई की तरसील है उसी कॉरिडोर से होती थी। दीगर ममालिक में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है खुरम शहजाद साहब? जी आप ये देखेंगे कोई कंट्री जो है 15 दिन में करता है, कोई 30 दिन में करता है, किसी के पास रिजर्व्स अगर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स भी अच्छे हैं, तेल के रिजर्व्स, गैस के रिजर्व्स भी अच्छे हैं। इस वक्त तो गैस का बुरान तो हर जगह है, क्योंकि इंडिया के पास भी गैस नहीं होगी, आगे जो पूरी पट्टी है एशिया पैसिफिक की, पर क्योंकि वो सारा कतर देता था और हमारे पास भी वही था, तो गैस का बुरान तो हर जगह होगा, लोड शेडिंग होगी। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई जल्दी, गैस की डिमांड नीचे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी जगह ये दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस की, उन्होंने अपने गैस के जो कुएँ थे उनको ऑन कर दिया है दोबारा से, पहले रोक दिया गया था, तो वहाँ से गैस आ जाएगी, तो गैस की थोड़ी बहुत ये वाली मैनेजमेंट होगी। ऑयल में बड़ा अच्छा हमारे पास जो है ना रिजर्व आज है, सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता हूँ कि अप्रैल के लिए जो है ना अब जो है ना शिप्स जो है मंगवाए जा रहे हैं, अरामको के साथ बड़ी पॉजिटिव बात हो गई है, और फ्यूजोरा जो यूएई का पोर्ट है वहाँ से, और याम्बू जो कि सऊदी का है, रेड सी का जो एरिया है वहाँ से हमें क्रूड आता रहेगा इंशाल्लाह।
मार्च तक कवर्ड हैं, अप्रैल की अब जो है प्लानिंग हो रही है और अप्रैल में भी अच्छी कमिटमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। देखिए ये बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ आपके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हो ना, जैसे सऊदी के साथ हमारे हैं, तो इन हालात में आपको वो काम आते हैं और वो आज काम आ रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश ने क्या किया है अभी रिसेंटली, आप ये हम जब बात कर रहे हैं इससे थोड़ी देर पहले, उन्होंने रैशनिंग कर दी है, यानी कि मोटरसाइकिल को 2 लीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा पूरे दिन में, गाड़ी है तो उसको 10 लीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर कोई लॉन्ग रूट पे जा रही है तो उसको उस हिसाब से जो है वो कम किया गया है। तो किसी कंट्री में पेट्रोल डीजल पे जो है ना एक लिमिट लगा दी गई है, किसी कंट्री में प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन प्राइसेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बढ़ाना, क्योंकि अगर आप प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप रोकेंगे प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं से वो निकल के जो है ना वो आपको पता है गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं से निकल के वो या तो चोरी हो जाएगा या होर्डिंग हो जाएगी या स्मगलिंग हो जाएगी। तो बेहतर ये कि हमने जो पास में अपनी गलतियाँ की हैं वो क्यों दोहराएं। प्राइस आप मार्केट पे रखें, प्राइस किसी भी चीज़ की हो वो मार्केट ड्रिवन हो, डिमांड सप्लाई पे हो, हाँ उसकी गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए और नीचे प्राइसेस जाती हैं उसको भी हम इंश्योर करें। तो बांग्लादेश ने ये डिसीजन लिया है। आप देखेंगे कि जो जो कंट्री आगे आते रहेंगे ये सारे अपनी अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता कि एक कंट्री में ज़्यादा प्राइस हो एक कंट्री में कम हो, तो वो आपस में जो है ना वो स्मगलिंग का भी इशू हो सकता है जो कि बॉर्डर एरियाज़ में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्री ऐसा होगा जो देखिए आप यूएस की मैं बात करता हूँ, यूएस में आपकी अपनी प्रोडक्शन है, उनकी अपना वो सेल्फ सफिशिएंट है, फिर भी वो जो है प्राइसेस बढ़ाते हैं और हर स्टेट की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। क्यों बढ़ाते हैं प्राइसेस? आज सऊदी भी बढ़ाता है, आज यूएई वाला भी बढ़ाता है, आज पूरा मिडल ईस्ट भी बढ़ाता है प्राइसेस। क्यों बढ़ाते हैं? वो इसलिए बढ़ाते हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको हर कमोडिटी की कीमत सही रखनी है। कीमत सही रखेंगे, इकोनॉमिक्स सही होगी, इकोनॉमिक्स सही होगी, हर चीज़ जो है ना वो आपकी ट्रैक पे होगी। तो मेरे ख्याल में हमें प्राइस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्राइस कम होती है तो हमें फौरन से पास ऑन भी करना असल चाहिए, में लेकिन साथ साथ हमें बिल्कुल आपने सही कहा कि अपने खर्चों को भी कम करना है। खुर्रम शहजाद साहब, आप बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन आप जिन ममालिक की एग्जांपल देख रहे हैं वहाँ पर कैपिटा इनकम और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसमें सर बहुत ज़्यादा खलीज है, काफ़ी फ़र्क है। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ जो लोगों के इक्तिसादी हालात हैं वो इतने जो है वो बेहतर नहीं है जितने वेस्ट में और बिलखसूस अमेरिका या दीगर ममालिक में है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब आप लोगों ने ये भी फैसला किया है कि फोर्टनाइट के बजाय हर 10 दिन बाद पेट्रोल की या 8 दिन बाद कीमत का दोबारा से तयन किया जाएगा। तो आप आने वाले दिनों में मजीद इस पर स्पाइक देख रहे हैं या आप समझते हैं कि इसमें कोई स्टेबिलिटी रहेगी? 2 सवाल किए आपने। पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई पर कैपिटा को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं खुद इस चीज़ का हामिल हूं कि पर कैपिटा के हिसाब से आपकी जो है ना वो कंजम्पशन होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूएस जैसी इकोनॉमी जिसकी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, वो भी कीमत बढ़ाते ज़रूर हैं, क्योंकि उनके पास, मैं कह रहा हूँ कि वो तो दुनिया के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स में खुद हैं, खुद जो है ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी प्राइस बढ़ाते हैं वो इसलिए कि उनको मार्केट ड्रिवन जो है अप्रोच रखनी है। दूसरी बात ये, आप बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इनसे कंपेयर करें, कल के इंक्रीज से पहले तक हम भी $1, पौना $1 के करीब थे, ये सारे पौना $1, सवा डॉलर के करीब हैं। आज हम $1.1 पे आ गए। तो हमारा कोई इतना बड़ा इंक्रीज नहीं हो गया कि हम पूरे रीजन से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। कोई 25-30% का या 50% का आधे आधे का फ़र्क नहीं है, आज भी हम पास हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने डिसीजन पहले ले लिया है, हमने प्रोएक्टिव किया और हमारी कॉस्ट इतनी हुई है, इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो हमने डिसीजन ले लिया है। अगर दूसरे जो है 15 दिन बाद करते हैं तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप प्राइसेस बढ़ती हुई देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्री सारे रुक रहे हैं, पाकिस्तान से प्राइस बढ़ा दे। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान के आप देखें ना, हमने स्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल से अचीव की है। अगर हम वही चीज़ें करते रहें जो पिछले पास में करते रहें तो फिर फ़र्क कुछ भी नहीं रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि आगे जाते हुए क्या देखते हैं। देखें, एक ग्लोबल कंसेंसस हो रहा है कि ऑल्टरनेट रूट्स भी जो है डिस्कवर हो रहे हैं। आपने देखा होगा रशिया को थोड़ा सा अलाउ किया है। अलाउ से मुराद ये कि बताया गया कि रशिया से भी ले लें, इधर से भी ले लें। और दूसरा ये कि ऑल्टरनेट रूट्स की भी बात हो रही है। तो कोई भी इकोनॉमी या कोई भी ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो कभी भी किसी एक रूट पे डिपेंडेंट नहीं होते। आप रशिया और यूक्रेन का देख लें, जंग हुई, ऑयल 120 पे गया, 11 महीने तक 100 और 80 के बीच में रहा ऑयल, और उसके बाद नीचे आ गया। जंग आज भी चल रही है, लेकिन ऑयल नीचे आ गया क्योंकि सप्लाई आ गई। और कोविड में भी ये हुआ था, कि पहले लोगों ने जो है रिस्ट्रेंट किया, फिर उसके एक सप्लाई आई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये इकोनॉमिक्स दुनिया के ऐसे काम करती है कि अगर कहीं कोई चीज़ रुकती है तो उसके अल्टरनेट रूट्स खुद ही निकल आते हैं। ये नहीं हो सकता कि दुनिया उसी पे डिपेंडेंट रहे। इसका भी ये होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुल जाएगा, अगर नहीं भी खुलता तो अल्टरनेट रूट्स आपके आ जाएंगे। ये जो 20% का गैप है यहाँ से जो आ रहा है, ये कहीं और से पूरा होगा और इकॉनमी दुनिया की चलती रहेगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह मार्केट्स। टूवर्ड्स द एंड इसका इम्पैक्ट कितना देख रहे हैं आप? ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, ज़ाहिर बात है इसका इम्पैक्ट भी आएगा, फूड प्राइसेस में भी आएगा, दीगर चीज़ों पे भी इसका आता है। उसको किस तरह आप लोग गौच कर रहे हैं वजारत ख़जाना पे बैठ के कि उसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है? देखें, इम्पैक्ट तो बिल्कुल होगा। जब तक ये इश्यूज़ रहते हैं, प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ती हैं, महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी,
اس کے ساتھ فائنینشیل جو ہے وہ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ پریشرز آتے ہیں, سب کے پوری دنیا کے آتے ہیں نا جی. تو امپیکٹ تو ہوتے ہیں, لیکن کتنا سسٹین کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اگر لیٹس سے ایک ہفتے بعد اناؤنسمنٹ آتی ہے, خلیجی ممالک میرا نہیں خیال کہ آگے بڑھنے دیں گے اس کو, کیونکہ خلیجی ممالک کا سب سے بڑا لاس ہے اس میں, ان کی ایکسپورٹ کا لاس ہے آئل اینڈ گیس کا, وہ جو ہے وہ اس وقت سیکورٹی تھریٹ ہے ان کو, ان کی ٹورزم کا اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے, ان کے انویسٹمنٹ کا اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ پہلے سب سے پہلے تو وہ چاہیں گے کہ جی ایک ہفتے میں یا 10 دن میں 20 دن میں یا جلد سے جلد اس کو جو ریزالو کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس یہ مسئلہ بھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس کی اپنی اکانومی بہت زیادہ ہرٹ ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہ جنگ میں لگے رہے, انفلیشن وہاں بڑھ جائے گی, وہاں پہ ان کے فائنینشیل کنسرنٹس بہت ہو جائیں گے. آلریڈی ان کی عوام جو ہے وہ شروع ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا. تو میرے خیال میں امپیکٹ ہوگا بٹ لمیٹڈ ہوگا, آگے جاتے ہوئے رستے کھلیں گے. اور جو فوڈ کی آپ نے بات کی دوسری, میں یہ کہوں گا پروونسز کا اور لوکل اکانومیز کا بہت بڑا رول ہے. فیڈرل بیٹھ کے سب کچھ نہیں کر سکتا. پروونسز کو اس لیے آن بورڈ کیا گیا ہے کہ ان کی سارے جو سیکرٹریز ہیں, سب کچھ سارے جو ریلیونٹ اسٹاف اور ریلیونٹ جو پرسنل ہے, ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی ہیں, ان کو آن بورڈ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ ریٹیل مارکیٹس میں اور جو ان کی احاطے میں مارکیٹس ہیں ان کو جا کے جو ہے وہ کنٹرول کریں, ان کو جا کے دیکھیں کہ وہاں کوئی پروفیٹیرنگ تو نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی اس چیز کو دیکھیں, کیونکہ یہ پروونسز کے احاطے میں آتی ہیں چیزیں کہ مارکیٹس کیسے کنٹرول ہوں, ضلع میں کوئی پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے, سپلائی سائڈ کس طرح سے جو ہے مینیج ہو رہی ہے. تو ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. یہ مل کے چلیں گے آگے انشاءاللہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد ریزالو ہو جائیں گی چیزیں, ایٹ لیسٹ یہ رستہ کھل جائے گا جس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہے نارملائز ہوں گی, اور جو امپیکٹس ابھی شارٹ ٹرم میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایز ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹورڈز دی اینڈ خرم شہزاد صاحب, وہ آپ ظاہر بات ہے آپ خود بھی ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کو بڑا اچھا طرح سمجھتے ہیں. پاکستان میں ایک روایت رہی ہے کہ جو چیز ایک دفعہ بڑھ جائے وہ جس رفتار سے بڑھتی اس رفتار سے کم نہیں ہوتی. تو یہ اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں وی ہوپ اینڈ پرے کہ چیزیں جو ہے نارملائز ہوں اور الٹرنیٹ ایونیوز بھی ہمیں میسر آ رہے ہیں. سعودی عرب سے بھی بات چیت چل رہی ہے, رشیا کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے بھی ہے کہ جی بندش زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. قطر کے جو انرجی منسٹر ہیں ان کا بیان بھی سب سامنے آیا ہوا ہے کہ جی LNG کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ہم نہیں فلفل کر سکیں گے, اور متنبع کیا انہوں نے کہ جی ہماری جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس رفتار سے بڑھی اس رفتار سے پھر کم بھی ہوگی پیٹرولیم پرائسز؟ دیکھیں جی بالکل, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیز اوپر جاتی ہے ایمرجنگ مارکیٹس میں, خاص کر ہماری جیسی ڈیولپنگ اکانومیز میں, اس میں نیچے بہت آرام سے آتی ہے, تو جلدی نہیں آتی. لیکن دیکھیں یہ تو ریگولیٹڈ اسپیس ہے نا, کہ اگر پرائسز گرتی ہیں تھوڑا سا ٹائم لیگ ہو سکتا ہے, بٹ گورنمنٹ آف پاکستان دوبارہ سے اس کو پاس آن بھی کیا اور کیا بھی ہے. آپ دیکھیں پچھلے 2 سال کی میں بات کرتا ہوں, پیٹرول کی قیمت 331 روپے پہنچی تھی, واپس 250 روپے پہ آیا ہے پیٹرول. تو یہ ہوا ہے نا پاکستان میں, ریسنٹلی ہوا ہے. تو یہ دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن آپ کی بات لارجلی ٹھیک ہے, بٹ یہ جو اسپیسیفک کیسز ہیں اس میں آپ کو نظر آیا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں چیزیں ریورس بھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ وی آر ہوپفل کہ جی جتنا جلدی مسئلہ ریزالو ہو. ہماری اس وقت دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سپلائی کو انشور کر رہی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پرائسنگ تو ایک چیز ہے نا جی, مہنگی سستی ہونا وہ تو گلوبل مارکیٹس ہیں. سپلائی امپورٹنٹ ہے, سپلائی آپ کے پاس ہوگی نا تو آپ کی اکانومی چلتی رہے گی, بہتر رہے گی اکانومی, آپ کو فیول ملتا رہے گا. پرائس اوبیسلی تھوڑی مہنگی ہو سکتی ہے, اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے شارٹ ٹرم میں, لیکن سپلائی اگر نہیں ہوگی نا تو اکانومی رکتی ہے, گلوبل اکانومی رک سکتی ہے, ریجنل اکانومیز رک سکتی ہیں. تو سپلائی کو انشور کرنا یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب تو اپریل کے لیے جو ہے وہ پلاننگ جو ہے ہو رہی ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بہتر جو ارینجمنٹ ہوگی. سر تھینک یو سو ویری مچ. خرم شہزاد صاحب آپ ایڈوائزر ہے وفاقی وزیر خزانہ کے, ہم سے گفتگو کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار مہتو صاحب نے لاہور اسٹوڈیو سے. ذوالفقار مہتو صاحب, آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اجلاس بھی کیا جس میں انہوں نے 48 گھنٹے میں ایک پلان بنانے کا کہا ہے. اپنی جو کور ٹیم ہے اس میں وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی موجود تھے, ہارون اختر خان صاحب بھی موجود تھے جو کامرس کو دیکھ رہے ہیں, اور بلال کیانی صاحب بھی تھے وزیر مملکت برائے خزانہ, دیگر وزراء بھی موجود تھے. بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ بھی عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ اور میں عوام سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب عوام بھی چاہے گی کہ حکومت کی طرف سے کوئی کفایت شعاری اور جو ہے وہ اس طرح کے پلان عملی طور پہ نافذ ہوتے ہوئے نظر آئیں, ایکسپینڈیچر کٹ؟ جی شکریہ انوار صاحب. بالکل یہ عوام کی بھی ہے اور حکومت بھی اس بارے میں سنجیدہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنی جو ہے وہ چادر کو سمیٹیں اور اپنا کاسٹ کٹنگ کریں. اور حکومت نے کچھ کی بھی تھیں, کچھ ادارے انہوں نے بند بھی کیے تھے, لیکن اب چونکہ یہ جنگ کا ماحول ہے انوار صاحب, یہ جو اس وقت انفلیشن ہے نا, جیسے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول کی آپ بات کر رہے تھے خرم صاحب سے,
देखिए 21% जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड बढ़ा है, 72 से $92 का हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर एवरेज डीजल और जो पेट्रोल की प्राइस है वो 273 से बढ़ के अब 328.50 रुपये, तो ये भी 21% है। इसका आप पूछ रहे थे उनसे कि कहाँ कहाँ बढ़ी है, आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन अमेरिका में 7% बढ़ी है। और इंडिया की अब हमारे साथ हमसे आया ना, इसकी बड़ी मिसालें दी जाती हैं, मैं ज़रा उसका कंपैरिजन कर दूं। इंडिया ने 6.5 रुपये इंडियन रुपीज़ जो है वो अपने टैक्सों की एडजस्टमेंट की है। उन्होंने जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो 4.5 रुपये कम की है, और 3 रुपये का इम्पैक्ट या 2.5 रुपये 2 रुपये का इम्पैक्ट जो है मुख्तलिफ रियासतों ने दिया है। तो अगर आप इंडिया के और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाहें तो पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर जो एवरेज है डीजल और पेट्रोल की वो है $1.17 यूएस डॉलर्स। तो इंडिया के अंदर अगर ये टैक्सेस कम ना करते वो, तो ये 9 सेंट का जो इम्पैक्ट है वो उसमें शामिल हो जाता, तकरीबन बराबर हो जाता। लेकिन वहाँ पे उनका 9 सेंट 8 सेंट पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल सस्ता है, उन्होंने एडजस्टमेंट की है। अब हमने टैक्सों में एडजस्टमेंट इसलिए नहीं की कि हमारा एग्रीमेंट जो है IMF के साथ एक पूरा फंसा हुआ एग्रीमेंट चल रहा है। अगर हम यहाँ पे रिलीफ देते हैं टैक्सेस की तो फिर ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट होगी और पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ेगा। एक और अहम बात यह कि आप तो बात सिर्फ पेट्रोल की कर रहे हैं ना, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई है इसके अंदर यूरिया ने बहुत बड़ा एक उद्यम मचाना है अनवार साहब। अच्छा। 21% जो है वो यूरिया की प्राइस बढ़ गई है, $580 पे चला गया है। और सऊदी अरेबिया का, कतर का, ओमान का और ईरान का बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में शेयर है। सऊदी अरब दुनिया का चौथा बड़ा प्लेयर है यूरिया की सप्लाई में, तो ये उसके फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। और एक बात सिर्फ मैं करता चलूं कि ये जो है ना अमेरिका, ये जंग को लंबी नहीं करेगा। 136% ऑफ द GDP उसका कर्जा हो गया है, तो ये बहुत मुश्किल मामला होगा अमेरिका के लिए। उसने भी तेल की कीमतें 6-7% बढ़ाई। सर थैंक यू वेरी मच जुल्फ़िकार महतू साहब, आपने आर्म्स स्टैगर्स भी शेयर की। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। कल भी हम इसी टॉपिक को रखेंगे क्योंकि आपने देखा है कि मशरक़ वस्ता की क्राइसिस से कितनी मुख्तलिफ जहतें हैं और पाकिस्तान भी अब इसके इम्पैक्ट की लपेट में आ गया है पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे के साथ। इन तमाम मामलात को कल तक लिए उठाए रखते हैं। आज के प्रोग्राम पर अपनी फीडबैक दीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।